ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਹਰੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਗਰਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਰ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਗਰਬ ਨਾਲ ਮਗਰਬ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਗਾ ਖਾਨੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਚੇਂਜ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫਜਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ, ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰਲੀ, ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਚਲੀ। ਇਹ ਦੋ ਐਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਰਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਰਿਕ। ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ज़ईफ़ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, और जिन्हें सजदा ताज़ीम नहीं किया वो लानती मरदूद शैतान है। जो शैतान ने किया वही साढ़े मौलवी कहते, जो अल्लाह ने किया, अल्लाह के नबी ने किया, अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, ਉਹਦੀ मुखालफत करते हैं। कहते जी ये ऐतां जड़ियाँ इन्हों हदीस मनसूख कर देंदी। अल्लाह अकल समझ ते ईमान देन, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह बगैर तलब कीते बगैर मंगियो दिंदे नहीं, खुद नहीं दिंदे। हर नेमत अल्लाह ताला बगैर मंगियो दे देंगे, कोई तलब करे ना करे अता कर देंगे। जिस तरह अखां किसी ने मंगिया तो नहीं, जदों बच्चा पैदा होंदा उन्हें कोई भी नेमत मंगी सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ खुद नहीं देंगे। ये कोई तलब करूगा, कोशिश करूगा, तलाश करूगा, किथे जाऊगा जिथों ईमान मिलता, फिर ईमान मिलूगा। मुसलमानों के घर जम के मुसलमान हो जाता, मोमन नहीं होंदा, वो ईमान वाला नहीं होंदा। क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो सूरत हजरात साफ फरमाया कि एक बेवकूफ़ां दा गिरोह मुसलमान होया तो कहते असी मोमन हो गए। अल्लाह ताला फरमाते ऐ नबी इन्हों कहो अपने आप को मुसलमान कहन, ईमान कदों दाखिल होया इन्हों के दिलों च। और जिन्होंने लोगों ने बैत की है उन्होंने नहीं इस तरह फरमाया कि अपने आप को मुसलमान कहो, उन्होंने बारे फरमाया कि इन्होंने मेरे हाथ बैत की, मैं इन्हों से राजी हो गया। ऐ नबी इन्हों जन्नत की बिशारत दे दो, क्योंकि मोमना जन्नत की बिशारत आ, उन्होंने अल्लाह ताला ने मोमन फरमाया। हालांकि जो मुसलमानों के घर जम के मुसलमान आ, ये मुसलमान आ, मोमन नहीं। मोमन उदों होंगे जदों किसी कामल वली तो ईमान हासिल करेंगे, बैत करके ईमान हासिल करेंगे तो मोमन होंगे। जदों मोमन होंगे भाई फिर नमाज महराज होएगी, क्योंकि मोमन की नमाज महराज है, मुसलमान की नमाज महराज नहीं होगी। जदों नमाज महराज होएगी ना, कदों होएगी? जदों दा कल्ब अर्श होएगा। मोमन जदों ईमान हासिल करूगा फिर जिहड़ी तालीम करनगे उहदे ते अमल करदा रहेगा, फिर उहदा कल्ब जदों पाक होगा, क्योंकि वह कल्बी तालीम करनगे, कल्बी जिक्र दसणगे, जिहदे नाल कल्ब पाक होएगा फिर अल्लाह दी ज़ात पाक आ, पाकीज़गी नूं पसंद फरमाउंदे आ, फिर अल्लाह दी ज़ात उस कल्ब विच आ जांदे आ, क्योंकि मोमन दा कल्ब अल्लाह दा अर्श आ।
कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਹਯਾਈ? ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, अपनी अकल नाल कीता, सही भी कीता, और मैं फिर भी खता की क्योंकि कुरान का तर्जमा अलहामी तरीके नाल करना चाहिए क्योंकि अल्लाह का कलाम आ। जिन्हों अल्लाह इलम दें वो करे। जिन्ने बड़े बड़े बुजुर्ग होए आ, किसी ने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, तर्जमा लिखे? क्यों नहीं लिखा भाई? एडे बड़े तालम से गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह लिख देंगे तर्जमा, कुरान का तर्जमा कर देंगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कर देंगे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कर दे, जबकि उन्होंने वर्गे तो किसी के मुरातब भी नहीं है। ये तो बड़ बड़िया हस्तियाँ हुई है लोग, किन्ना अल्लाह का कुरब से। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा लिख देंगे, जबकि आप फरमा रहे हैं हशर च सब तो उच्चा मेरा ही झंडा होगा। और जो आप ते हालत होंगी सी तो एक बुजुर्ग ने आपके सामने कुछ अजहार किया ना, तो आपने ज़मीन पे पैर मारिया और फरमाया मैं मुहम्मद वक्त हैं, मैं मुहम्मद वक्त हैं। हशर च सब तो ऊंचा मेरा ही झंडा हो, हशर च सब तो ऊंचा मेरा ही झंडा हो। वो कुरान का तर्जुमा भी लिख देंगे तो इन्नी बड़ी जी बुजुर्गी। और अल्लाह ताला ने एक दफ़ा उन्होंने इल्हाम फरमाया कि ऐ अबुल हसन मैं तेरे विच है ना, ते लोग तां तेरी कदर करते क्योंकि वली किहनूं कहंदे जिहदा अल्लाह नाल तल्लक है, अल्लाह दा दोस्त है, कि मैं तेरे दिल च रहिंदा हां। इस वास्ते लोग तेरा अदब करते हैं, तेरी कदर करते हैं, ये मरतबा तेरा समझते हैं क्योंकि मैं तेरे दिल च हां। तो मैं ना होवां ना तेरे नाल, तैनूं पुछे ही कोई। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते बारी ताला बिल्कुल हक, तो तू मेरे विच है तो मेरी इन्नी कदर है, वरना मैनू कोई ना पूछे। फिर अर्ज के बारी ताला एक तेरा राज मेरे कोल ऐसा है, जे मैं वो मखलूक नूं दस देवां ना तैनू भी कोई ना पूछे। अल्लाह ताला फरमान लगे अबुल हसन ठीक है तू मेरी गल ना कर, मैं तेरी गल नहीं करदा, तू ये मेरा राज दसी ना, मैं भी तेरी आह गल नहीं करदा। हुण जिस तरह किसी नूं चुप कराउणा होवे ना मतैहत नूं, किसी भेद का पता लग जाए तो कुछ लै दे के ही अगला मनदा। हुण अल्लाह ने की दिता, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अबुल हसन जिहड़ा तेरा नाम लऊगा ना और जिहड़ा सुनूगा मैं सारे नूं बख्श दूँगा, बगैर हिसाब बख्श दूँगा, ना लैने वाला भी सुनने वाले भी जंती कर दूँगा। हुण इहदे च बई जंती तो हो गए, जिहदा अकीदा खिलाफ होगा वो भी हो जाऊगा, क्योंकि सुनना भी एक अमल आ, एक नेकी आ। उन्हां दा नाम लैना, जिस तरह जिक्र करना, कुरान पढ़ना, इस तरह नबियां दे वलियां दे नाम लैना, उन्हां दा तज़किरा करना, ये भी इबादत है। तो इबादत दी कबूलियत दा दारोमदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पा गया अकायद ते है। अकायद ज़रूरी चीज़ है, अमल एडे ज़रूरी चीज़ नहीं, क्योंकि नबी पाक दी हदीस पा गया कि किन्नी मखलूक ऐसी होगी जिन्हां दे अमल होणगे ही नहीं, कोई एक नेकी भी नहीं होएगी और वो जंती होणगे, और वो जंती होणगे। एक ऐसे ग्रोह होणगे पहाड़ां की तरह अमल होणगे और वो दोस्ती होणगे,
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਮਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ